Assalamu alaikum, dear students, welcome to all of you. आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, उसके जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है वो हम पढ़ेंगे, थोड़ा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने पढ़ा था कल। देखिए, पहला स्टेज जो है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, दिस स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देन व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज इन द सेकंड स्टेज, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिमिनिशिंग, this stage is called a diminishing stage of diminishing returns. And third stage, when marginal product is negative, it is called stage of negative returns. Significance of the stages of production. Suppose, for example, as the question may be posed to a student or to a person, suppose we may pose question like this: will a producer stop production in the stage 1 of production? In the first stage, will the producer continue to produce, or will he stop in this stage? The answer is clear: yes, he will continue to produce in this stage, because every additional unit of the variable factor will give him more and more units of the marginal product, or the output will increase at the increasing rate. It is clear that he will not stop his production in the first stage, because एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर जो वो एम्प्लॉय करता है, जो वो यूज़ करता है, एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, इट विल गिव हिम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट। और इसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इट विल बी राइजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी राइजिंग, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल बी हैविंग more and more, or adding more and more units to the total output, or its marginal product will be rising. So therefore in this stage he will not stop his production. Now if we go to the stage third, will the producer stop in the stage third, or will he continue the production? In this stage, the every additional unit of the variable factor will give less and less units of the, or in stage third, every additional unit of the variable factor will be having negative marginal productivity, or the total product will be declining, and nothing will be added to the total product. In stage third, when we employ additional units of the variable factor, we will be having less and less of the total output, and our output will be declining, because we will be having marginal product. Marginal product जो है it will be negative. यानी in stage third, when we employ more and more units of the variable factor, our total product will go on declining, because our marginal product will be negative. In this stage, it will be foolish, or it will be totally unacceptable, or it will be totally unwise to continue the production, as the total product will be declining because of the negative marginal productivity of the additional unit of the variable factor. Therefore it will be wise to stop the production in the stage second. It would be wise and profitable for the producer to stop the production in the stage second, not in the third stage. He will not go into the third stage, because in the third stage his total output will decline and marginal product will become negative. Therefore he will stop the production in the second stage, because in the second stage his total product will be increasing at the decreasing rate, and marginal product will be declining but still positive. Yani producer will stop his production in stage second, where his total product will be increasing at the decreasing rate, and marginal product will be positive, will be declining but still positive. In this stage, that is in the stage second, the producer will stop production, where his total profits are maximized, that is when marginal product is declining but still positive. There can be a situation between increasing returns and decreasing returns. There can be a situation of constant returns to a variable factor. There can be a situation of constant returns to a variable factor, where every additional unit of the variable factor will give us the same level of returns, or same level of marginal product. So for example, if second unit gives 10 units of marginal product, third will also give 10, fourth will also give 10 marginal product. That is, total product will increase at a constant rate. Total product will increase at the constant rate. But these situations are very rare in the production process. Postponement of the law. Can the law of diminishing returns be postponed, or can it be eliminated? Law of diminishing returns or law of variable proportions cannot be eliminated altogether from the production process. But one possibility is that it can be postponed.
One way of postponing the law of diminishing returns is through technological improvement. If the technology improves, then we can produce more output with the same level of inputs, or we can produce greater output with the same level of inputs, or this diminishing returns can be offset for a period of time, or it can be postponed for a period of time. इसी तरह से व्हेन सम सबस्टिट्यूट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज डिस्कवर्ड, अगर हम फिक्स्ड फैक्टर जो हमारा है, कांस्टेंट फैक्टर जो है, जो हम फिक्स्ड रखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम उसका कोई सबस्टिट्यूट निकालते हैं, सो दैट द कांस्टेंट ऑफ द फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर इज रिमूव्ड, तो इससे जो फिक्सिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर जो है इट कैन बी रिमूव्ड. हाउएवर सच अ सिचुएशन इज वेरी रेयर इफ नॉट इम्पॉसिबल. मगर इस तरह की सिचुएशन फिक्स्ड फैक्टर के लिए हम कोई सबस्टिट्यूट्स निकालें ताकि फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर जो है उसको रिमूव किया जा सकता है, मगर इस तरह की सिचुएशन वेरी रेयर होती है प्रोडक्शन प्रोसेसेस में. पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड टू मीन दैट द लॉ कैन बी अवॉइडेड. पोस्टपोनमेंट, ये मैंने कहा अभी आपको कि पोस्टपोनमेंट डज नॉट मीन अवॉइडिंग द लॉ ऑल टुगेदर, और avoiding this law altogether or escaping this law. Ultimately, the law must come into operation when factor ratio crosses its point of optimality. Ultimately, the law of diminishing returns will set in when the factor ratios will cross their point of optimality. When the optimal combination of factor inputs is crossed, or it is broken, or there is mismatch between fixed and variable factors. Therefore, the diminishing returns will ultimately set in or will start. But we can postpone the law by better technological improvements or better production processes. But we cannot eliminate it altogether. A relationship between total product and marginal product, and average product and marginal product. यहाँ पर हमारा टेबल दिया हुआ है जिसमें हम टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के दरमियान हम रिलेशनशिप देखेंगे, और एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट के दरमियान हम रिलेशनशिप देखेंगे. देखिए, पहला यहाँ पर हमारे दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक तो है वेरिएबल फैक्टर, दूसरा है फिक्स्ड फैक्टर. लैंड यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर है, दैट इज आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड जो हमारा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड पर जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वहाँ पर यूनिट्स ऑफ लैंड दैट इज फिक्स्ड फैक्टर, हेक्टेयर्स में दिए हुए हैं 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दूसरा कॉलम जो है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, लेबर, वो देखिए आप वो वेरिएबल फैक्टर है. फिर आप देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट आउटपुट ऑफ राइस इन टन्स. फिर इसी तरह से टोटल प्रोडक्ट, इसी तरह से एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड. देखिए, पहला यूनिट जब हम इस्तेमाल करते हैं लैंड का और 0 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी 0 बिकॉज वी आर कीपिंग द लैंड यानी अनकल्टिवेटेड, और वी आर लिविंग अनयूटिलाइज्ड, यानी हम इसको आइडल छोड़ देते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन भी कुछ नहीं होगी. जब हमने इसको यूज़ ही नहीं किया, यानी कल्टिवेट ही नहीं किया लैंड को, तो प्रोडक्शन विल बी 0. बट व्हेन वी आर यूजिंग फर्स्ट यूनिट ऑफ labor with a fixed unit of the very fixed factor or the constant amount of the fixed factor, that is 1 hectare of land and 1 unit of labor. When we are using first unit of labor on this fixed amount of land, we are getting total product of, आप यहाँ पर देखिए टोटल प्रोडक्ट पे आप पहले देखिए टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6 क्विंटल्स. We are getting output of 6 quintals. Now when we are using 2 workers on the same piece of land, we are getting 20 quintals of rice. When we are using 3 workers, we are getting 48 quintals. When we are using 4 laborers, we are getting 72 quintals. इस तरह से 5th 80 quintals, 6th जब हम इस्तेमाल करते हैं 84 quintals, 7th 84, और 8th यूनिट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन डिक्लाइन होती है फ्रॉम 84 टू 80. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा टोटल प्रोडक्ट बनता है. अब हम इसको देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या निकलता है. फिर हमें जब हम कोई लेबर इस्तेमाल नहीं करते हैं लैंड पर, तो हमारा प्रोडक्शन 0 होता है, हमारी प्रोडक्शन 0 होती है. तो जब हम पहला इस्तेमाल करते हैं, पहला यूनिट ऑफ लेबर इस लैंड पीस ऑफ लैंड पर, तो हमारी प्रोडक्शन जो है इट इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 क्विंटल्स. तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होगा, 6. मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट बाय यूजिंग 1 more यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 6 है. फिर जब हम 2 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, हमारा टोटल प्रोडक्ट बन जाता है 20. एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट कितना होता है, फ्रॉम 6 to 20 इट मीन्स 14. इसी तरह से
जब हम 3 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं टोटल प्रोडक्ट बन जाता है 48। तो एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाता है 20 to 48 माइनस इज इक्वल टू 48 माइनस 20 इज इक्वल टू 28, यानी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट थर्ड यूनिट के लिए 28 है। इसी तरह से जब हम 7 यूनिट्स इस्तेमाल करते 4 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट बन जाता है 72। 72 माइनस 48 इज इक्वल टू 24। इसी तरह से आप देखिए, आप आगे चलिए, फिर जब हम 50 यूनिट इस्तेमाल करते हैं टोटल प्रोडक्ट इज 80। 80 माइनस 72 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से 6 यूनिट जब हम इस्तेमाल करते हैं टोटल प्रोडक्ट 84। 84 माइनस 80 इज इक्वल टू 4। फिर 7 यूनिट जब हम इस्तेमाल करते हैं टोटल प्रोडक्ट हमारा सेम रहता है 84। 84 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। फिर जब हम 8th यूनिट इस्तेमाल करते हैं टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन हो जाता है फ्रॉम 84 टू 80। 80 माइनस 84 इज इक्वल टू -4। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और किस तरह से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हो रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर अल्टीमेटली ये नेगेटिव बन जाता है। अभी आप यहाँ पर देखिए एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। 6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6। 20 डिवाइडेड बाई, देखिए जब हम 2 यूनिट्स ऑफ लेबर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा आउटपुट कितना है 20। 20 डिवाइडेड बाई 2 10। जब हम 3 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं लेबर के फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड के साथ 48 हमारा टोटल आउटपुट है। 48 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 16। इसी तरह से आप नीचे आते जाइए तो आपको यहाँ पर हमारा एवरेज प्रोडक्ट फिर डिक्लाइन होता चला जा रहा है फ्रॉम 6 to 10। इट इंक्रीज से फ्रॉम 6 to 10 to 6 to 10 to 16 to 18। फिर इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन फ्रॉम 18 to 16 to 14 12 and 10। अब हम इसी को थ्रू डायग्राम्स दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप आ जाइए, ये डायग्राम देखिए आप। देखिए यहाँ पर आप पहले रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, इसमें आप देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। when marginal product is 0, total product is at its maximum। आप यहाँ पर देखिए when marginal product is 0, total product is at its maximum। हाँ, दूसरे तरीके से हम देखेंगे when marginal product increases at the increasing rate, total product will also be increasing at the increasing rate। अब यहाँ पर ये देखिए when total product increases, when marginal product is increasing at the increasing rate, when marginal product increases, when marginal product increases। अब यहाँ पर देखिए when marginal product increases from 6 to 14 to 28 to 24 to, when marginal product increases, total product will be increasing at the increasing rate। फिर जब हम देखते हैं कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगता है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन फ्रॉम 24 to 8 to 4, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है बट एट द डिक्रीजिंग रेट। फिर आप देखिए कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है तो उस वक्त टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है 84। फिर उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव बन जाता है -4, तो टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू फॉल। वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए अभी आप यहाँ पर ये है टोटल प्रोडक्ट करूँ ऊपर वाली फिगर में, फिगर 2, ये देखिए ये दोनों डायग्राम्स जो है इंटरकनेक्टेड है। ऊपर वाली फिगर जो है उसमें हमने टोटल प्रोडक्ट दिखाया है, नीचे की जो डायग्राम है उसमें हमने दिखाया है एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट, अब इसके 3 सेक्शन है टोटल प्रोडक्ट करूँ के, फ्रॉम O to K, K to R एंड बियॉन्ड R। यहाँ पर ऊपर देखिए आप, इसके 3 सेक्शन है टोटल प्रोडक्ट करूँ के, O to K, K to R एंड बियॉन्ड R, यानी टू द राइट वर्ड्स ऑफ द R जो सेक्शन है, थर्ड सेक्शन। अप टू O K आप देखिए कि टोटल प्रोडक्ट जो है इट इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट।